किसी किसी को this might look like an very weird experience and an experience which they do not want to experience ever. But मेरे लिए I am cherishing this experience. This is something which I'll remember for a long time to come, to be honest. Hey guys, good morning. It's a beautiful morning and this is my third weekend in Manali. Today I am heading towards Chandatal. So Manali से Chandatal का distance is around 100 kilometers now, courtesy the Atal Tunnel. So I have a lot of time today. So I have been thinking कि मैं आज थोड़ा रुकते रुकते पूरा नज़ारा लेते लेते जाऊँगा. I'll stop at places. You can check out all the places I covered en route in the episode 2 of this vlog series, link of which is appearing on the top right corner and is also available in the description box. Also, kindly hit the subscribe button and activate the bell icon to follow all my travel and adventure updates and get all the notifications regularly. सच पास जाने से पहले तक मुझे ये तो पता था, पहाड़ों का कुछ अलग ही नशा है. Nothing seems to be enough. लेकिन सच पास से लौटने के बाद से ये पता चल रहा है ऑफ रोडिंग का नशा भी कुछ कम नहीं है. And that newly acquired addiction is now pulling me towards a new adventure, a super bumpy ride to one of the most beautiful lake of Himachal, Chandatal. मनाली से अटल टनल क्रॉस करके रोहतांग पास की तरफ जाते टाइम यू विल फाइंड दिस जंक्शन व्हिच इज नोन एज ग्राम्फू. यहाँ से शुरू होता है स्पीति वैली का रास्ता. Apart from this, there is no other significant direction available, and thus there is a chance of missing this important point. So please keep a close eye after crossing Khoksar village. ग्राम्फू से चंडताल 65 किलोमीटर का रास्ता है जो कि पूरा ऑफ रोड है. There are 3 villages on the way, namely छतरू, छोटा दाड़ा and बाताल, which are almost equally spaced. चंडताल में जनरली रहने का कोई परमानेंट एकोमोडेशन नहीं मिलता है. Rather, there are some temporary camps which would only be operational during tourist seasons. So a lot of people make Batal as their base for the Chandatal trip. The name of Chandatal originates from its crescent shape. So crescent से आती है Chandra or the moon and Tal means lake. That is how it's called Chandatal or the moon lake. The Chandra river originates somewhere near this lake and later feeds into the Bhaga river near Tandi, thus creating Chenab river. All along our way today, Chandra river is going to accompany us. When I crossed Khoksar checkpoint, it was almost 3 in the afternoon, and I know it's quite late, so my plan is not fixed yet. If time permits, I'll try to reach Chandatal tonight itself and seek for a camp for the night stay. Although road condition देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि अंधेरा होने से पहले चंडताल पहुंचना मुमकिन है. In that case, my backup plan is to stay back at Batal and start afresh for Chandatal tomorrow morning. I'm in Chandatal. It's around 4:30 in the afternoon. यहाँ से मैं अभी छतरू पार कर चुका हूँ, तो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है बाताल. देखते हैं कहाँ पे मुझे रूम मिलता है. बाताल में रूम मिलता है या चंडताल में कैंप मिल जाती है, तो दैट आई नीड टू सी. बट द रोड इज़ एक्सट्रीमली टफ दैट एज यू हैव बीन सीइंग. तो मैं यहाँ पे थोड़ा 1-2 मिनट का पिट स्टॉप ले रहा हूँ, देन आई विल अगेन हेड फॉरवर्ड. लग रहा है कि अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, बट लेट्स सी. Guys, guess what मैं कहाँ पे हूँ? I am inside a tempo truck. बेसिकली आई एम इन बाताल. मैं बाताल पहुंचा अराउंड शाम को 7 बजे. पूरा अंधेरा हो चुका था उस टाइम.
and somehow I reached the Chacha Chachi Dhaba, the famous Chacha Chachi Dhaba in Batal, and उनसे पूछा कि कुछ रहने का बंदोबस्त हो सकता है कि नहीं. They really told me आप इतना लेट क्यों आए हो यहाँ पे तो इतनी रात को और कोई ऑप्शन नहीं है रहने का, कोई जगह नहीं है, लेकिन आप पहले खाना वाना खा लो. That's what they said. दाल चावल दिए, गर्मा गर्म दाल चावल मिला तो थोड़ा बॉडी वार्म हुआ. उसके बाद दे आस्क्ड समबॉडी, मुझे उसका नाम पता नहीं, कल पता करूँगा उसका नाम. तो दिस गाय केम एंड दिस गाय हैड अरेंज्ड ब्लैंकेट एंड रजाई मेरे लिए, एंड ही हैज सेड कि और कोई जगह तो नहीं है, बहुत लिमिटेड कुछ स्टेन्स थे जो कि ऑलरेडी विजिटर्स आके बुक कर चुके हैं. तो द ओनली ऑप्शन दैट आई कैन ऑफर यू इज़ आप मेरे टेम्पो ट्रक के अंदर सो जाओ सीट में, एंड आपको मैं रजाई कंबल दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, दरवाज़ा सब लॉक है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सामान भी सही सलामत रहेगा. बट टू बी ऑनेस्ट, किसी को this might look like a very weird experience and an experience which they do not want to experience ever. But मेरे लिए I am cherishing this experience. This is something which I'll remember for a long time to come, to be honest, because ऐसे experience रोज नहीं होते. आप जाते हो एक जगह पे and you get a homestay, you check in and you happily sleep at your bed, but यहाँ पे there is no मुझे पता नहीं था कि कंडीशन ऐसा है, एंड आई इवन डिडंट नो कि इतना रात हो जाएगा क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था. सो व्हेन आई रीच्ड मुझे पता चला देयर इज़ नो ऑप्शन टू स्टे एट ऑल एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक. सो आई हैड टू फाइंड सम ऑप्शन एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कुड फाइंड एंड आई एम एंजॉइंग इट. तो द प्लान इज़ नाउ कि मैं अभी सो जाता हूँ, अभी थोड़ा गर्म हो गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर आके, तो अभी मैं थोड़ा सो जाता हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, एंड इट्स द फील्स लाइक वुड बी -in डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल. तो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ. द प्लान इज़ कि रात को मैं निकलूँगा एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर द मिल्की वे. अभी के लिए तो द मून इज़ देयर इन द स्काई एंड गाड़ी के अंदर बहुत खूबसूरत मूनलाइट भी आ रहा है, तो दैट इज़ मेकिंग दिस एक्सपीरियंस बिट मोर मेमोरेबल. तो गाइस अभी रात के 1:30 बजे हुए हैं. मैं लास्ट 1 घंटे से बाहर था, गाड़ी के बाहर. शाम को जितना हवा चल रही थी अभी उतना हवा नहीं चल रहा था, ठंड थोड़ा कम लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ अच्छा फ्रेम नहीं मिला. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद टुडेज फोटोग्राफी सेशन, सो आई एम बैक इनसाइड